Welcome, students. Welcome for the lecture of spherical astronomy, your fourth paper, BSc Honors Part 2. What you are looking on the screen, first of all, I have told you about the book which you have to purchase, the book of spherical astronomy by G.S. Malik. Okay, and which chapters are in your course? I have written here chapter 1, 2, 3 and 5. Unit 1 covers these 4 chapters. In unit 2 there are 2 chapters, 6th and 7th, and in unit 3 there are 2 chapters only. First chapter is 8th of this book, and the one additional chapter named Indian calendar, which is not which you will not find in this book. For this chapter, I will give you the notes, printed notes later on when we will meet. So today we will start the chapter 1, the basic fundamental chapter. In this chapter, in this lecture, I will try to cover these topics: great and small circle of a sphere, its axis, its poles, properties of poles, spherical radius, secondaries, spherical triangle and its properties. Okay, so here what are you seeing? This is the diagram of a sphere. Okay, because as the name suggests, spherical astronomy. The spherical in spherical astronomy, we will deal with the spheres. Okay, but when we draw a sphere in two-dimensional plane, it looks like a circle. But you have to be careful that whenever I draw a rounded shape, it is the shape of a sphere. So first of all, I am recalling you a general concept which you have already studied in first year in 3D geometry. What is the concept? कि if a sphere is cut by a plane, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी फ्रूट जैसे कि एप्पल या किसी भी स्फेरिकल फ्रूट को हम एक नाइफ से अगर कट करते हैं, तो कट करने के बाद ये जो इसका क्रॉस सेक्शन बनता है, ये जहां मैं पॉइंटर चला रहा हूं, इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय द प्लेन. और ये जो आपको बीच में शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इट इज द एरिया ऑफ द प्लेन. So we are talking about the section of the sphere by a plane. We know that whenever a plane intersects a sphere, the cross section which appears on the boundary of the sphere is nothing but a plane. You can prove this idea by simply claiming that this distance CD is constant. First of all, look here, O is the center of the sphere and OC is the perpendicular from center of the sphere on the plane. Okay, so O is a fixed point, and if I drawing a perpendicular from O on the plane, then C is also a fixed point. It means these two are fixed points, O and C. So the distance between these 2 points is also constant. So let I assume it by P. Now I have taken a point D on this cross section. D is any point on this cross section. Okay, then I have joined OD and CD. Now I am claiming that this angle OCD is pi by 2. You imagine that this OC lies inside the sphere. OC जो है वो स्फीयर के अंदर लाई करेगी, क्योंकि सेंटर से अपन प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं. और ये जो CD है, ये CD इस प्लेन में लाई करेगी. Why? Because C and D both are the points on the plane. So by the definition of plane, if I join any 2 points of a plane, then the line segment joining the points will completely lie in the plane.
So this CD lies in the plane and this OC is perpendicular to the plane. So this angle is nothing but pi by 2. Now I have applied Pythagoras theorem. See here. It claims that CD equals to constant. It means D, distance of D from C. C is a fixed point, but D is not a fixed point. D is any point on this section. So I have proved that distance of any point of the section from this fixed point C is constant. That's why I can say that locus of the points on this cross section is nothing but a circle. So this is nothing but a recall from our first year knowledge. Then another definition which you have again already studied about the great circle. Okay. In this figure, this cross section, we call it a small circle of the sphere or on the sphere. Why we are saying on the sphere? Because this circle is, we can found it on the boundary of the sphere. Now in case of great circle, when the plane which intersects the sphere passes through the center of the sphere, here the plane, this shaded portion, does not pass through O, so the circle formed is a small circle. But here the intersecting plane passes through the center of the sphere O. In this case, in simple words, we can say that I am cutting the fruit in such a way that my knife passes through the center of the fruit. So in this case, I will get the circle I will get is called a great circle. So one obvious fact you should remember that in case of a great circle, radius of the great circle is radius of the sphere. Okay. Now here we are going to understand a very important concept. What is the important concept? Now you visualize that there is a sphere in front of you, suppose a ball or a fruit. Now you have marked 2 points on the sphere by pen. Imagine that you have marked any 2 points on the surface of the sphere. Then I want to find number of great circle through 2 points on a sphere. इसका मतलब अगर आप किसी स्फीयर पर 2 पॉइंट्स मार्क कर दें, इमेजिन कर दें, विजुअलाइज कर दें, तब आप ये पता लगाना चाहते हैं कि उन पॉइंट से कितने ग्रेट सर्किल गुजर सकते हैं, पास हो सकते हैं. ओके, सो under this idea I am considering 2 cases, case 1 and case 2. Case 1 says that when the points, which points? The 2 points through which I want to pass a great circle, when these points are not the extremities of a diameter. Now what does it mean? Look in this figure. I have considered these 2 points A and B. ओके, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप 2 पॉइंट्स इमेजिन कर लीजिए एक स्फीयर पर, तो ये 2 पॉइंट्स हैं. अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं सरफेस की बाउंड्री पर है. अगर आप विजुअलाइज करें कि मैंने अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो डेफिनेटली इनको ज्वाइन करने की जो लाइन बनेगी, ये एक स्फीयर की कॉर्ड बनेगी जो कि स्फीयर के इनसाइड होगी, अंदर होगी. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो कॉर्ड बन रही है, ए टू बी तक ज्वाइन करने वाली जो लाइन बन रही है, क्या ये लाइन ओ से पास होगी? Definitely not. So this is the case 1. Case 1 says that if the line joining the 2 points are not the extremities of the diameter, यानी इनको join करने वाली जो line है वो एक diameter नहीं बनाती है, तो इस केस में A और B से पास होने वाला एक unique great circle होगा. What I am saying that, look here, this is the important concept. One unique great circle passes through A and B, because what is the reason behind it? In this case, if I consider these 3 points A, B and third point is O. Okay, why I am considering third point? Because I want to construct a great circle.
A great circle must passes through O, and and in addition I also what in addition I want the great circle must also pass through A and B. So it means I want a great circle which pass through A, B and A as well. So these are the three collinear points in space. So from 3D knowledge I know that only one and one, it means a unique plane can pass through three non-collinear points. So if only one plane can pass through A, O and B, it means only one great circle can pass through these 3 points. So what does it mean? If the 2 points on the boundary of a sphere are not the extremities of a diameter, then there exists one and only one. In other words, there exists only a unique great circle which pass through these 2 points. This is a very important concept. Okay, now case 2, another important concept. In this case I am considering that the 2 points A and B, जो पॉइंट मैंने यहाँ लिए थे, अब मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट तरीके से कंसिडर किए। क्या डिफरेंट तरीका है कि अब इनको ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है या जो लाइन सेगमेंट है वो O से पास हो रही है। यहाँ पर ये AB जो थी वो O से पास नहीं हो रही थी। क्लियर? तो इस केस में जबकि AB O से पास हो रही है तो हमारा कंसेप्ट कहता है कि A और B से पास होने वाले इनफाइनाइट ग्रेड सर्किल होंगे। इनफाइनाइट। ओके, कैसे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो आप देखिए, नाउ जैसा कि यहाँ हमने कहा था कि A, O एंड B आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर कहने का मतलब क्या था कि all the 3 points do not lie on the same line, but here the 3 points line on the same line. It means now I have to think how many plane I can pass through these 3 points, because every plane give rise to a great circle. Okay, now from 3D knowledge I know that if the 3 points are collinear, then you can pass, or infinite number of plane pass through these 3 points. So every plane which pass through A, O and B intersect this sphere in one great circle. So I have shown here 3 great circle. Look carefully. The first great circle is A. Here I have written 3 great circles. First is A, C1, B, D1. Look here, A, C1, B, D1. This is first great circle. Okay. Second great circle is A, C2, B, D2. A, C2, B, D2. Similarly, A, C3, B, D3. ओके, तो इस तरह से ए बी से आप पास होने वाला कोई भी यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ करोगे तो वो इस स्फीयर को एक ग्रेट सर्कल में इंटरसेक्ट करेगा। नाउ द अनदर डेफिनेशन, इट्स टाइटल इज एक्सिस एंड पोल्स ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा कि विच सर्कल। सो फार वी हैव अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आइदर ए ग्रेट सर्कल और ए स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल इन दिस केस, यानी किसी स्फीयर पर मैं 2 तरह के सर्कल्स को कंसीडर कर रहा हूं, या तो स्मॉल या ग्रेट। ओके, तो यहां पर आप देखिए, इन केस ऑफ ए स्मॉल सर्कल, अब यहां पर मैंने यहां पर एक इस स्फीयर का एक डायमीटर ड्रॉ किया है PQ। वैसे इसका नाम NS रखना चाहिए, आप इसको NS लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये डायमीटर किस तरह से ड्रॉ किया गया है कि ये इस स्मॉल सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो PQ है ये इस प्लेन को, सर्कल का जो प्लेन है ये इसको परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। तो ऐसा डायमीटर जो होगा वो इस सर्कल का कहलाएगी एक्सिस। ओके, दिस इज द एक्सिस, जस्ट लाइक एक्सिस ऑफ द अर्थ। ओके, अब इस केस में ये जो 2 इसके एंड पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीमिटीज हैं, ये कहलाएंगे इसके पोल्स। तो जो पॉइंट सर्कल के नियर है वो कहलाएगा नॉर्थ पोल, और जो पॉइंट सर्कल से फार्दर है, दूर है, वो कहलाएगा साउथ पोल, है ना। अब क्लियर सी बात है कि अगर मेरा सर्कल ग्रेट सर्कल होता, इंस्टेड ऑफ स्मॉल सर्कल, इफ आई हैव कंसीडर्ड ग्रेट सर्कल यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स जो होते ये इस ग्रेट सर्कल से इक्विडिस्टेंट होते। फिर हम इनको नियर और स्मॉल नहीं कहते, फिर हम कहते हैं बोथ सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट। ये मैंने यहाँ लिखा है,
ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ पोल्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इट इज आस्क्ड सेवरल टाइम्स। ओके, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ पोल्स, इस तरह से आप देखोगे आपके लास्ट फाइव ईयर्स के क्वेश्चंस में इट इज ऑलमोस्ट आस्क्ड इन एवरी ईयर, सो यू हैव टू मेमोराइज इट एंड विथ प्रूफ। ओके, यहाँ पर मैंने इनके प्रूफ शॉर्ट में लिखे हैं, डिटेल में प्रूफ आपको बुक में मिल जाएंगे। तो आप देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ पोल्स है तो ये पोल के बारे में बताएगी। तो ये कह रही है कि ए पोल ऑफ ए सर्किल, अगेन यहाँ पर मैंने स्मॉल और ग्रेट नहीं लिखा, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी दोनों तरह के सर्किल के लिए होल्ड करती है। ए पोल ऑफ ए सर्किल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, है ना। तो इसका मतलब आप देखिए इधर क्या हुआ, इस फिगर में आप देखिए ये पी पोल है, किस सर्किल का पोल है, ये सर्किल एडीबी। जनरली किसी सर्किल को कॉल करने के लिए हम उस सर्किल के ऊपर आइदर 2 और 3 पॉइंट्स का सहारा लेकर बोलते हैं। जैसे आप देखिए इस सर्किल पे ए, डी और बी 3 पॉइंट्स है। अब ये डी अभी मैंने आपको बताया नहीं क्या है, तो अभी आप समझिए कि मैंने इस सर्किल को ए बी सर्किल से कॉल किया है, डी तो अब मैं कंसिडर करूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, कंसिडरिंग एनी पॉइंट डी ऑन दिस सर्किल, यानी ये डी पॉइंट इस सर्किल पे कहीं भी हो सकता है। ओके, यानी जो जो बात मैं डी के लिए प्रूव करूंगा वो इस सर्किल के एनी पॉइंट के लिए होल्ड करेगी। ठीक है, तो आपको लिखना है लेट डी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, डायग्राम बनाना है, फिर लिखना है, फिर आपको यहाँ पर पी को डी से ज्वाइन करना है। देखिए आप इस फिगर में ज्वाइन कर रखा है, तो ये जो फिगर है बेसिकली इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने का फिगर है ये। तो यहाँ पर मैंने पी से डी को ज्वाइन किया इन 2 वेज। कैसे, एक तो मैंने पी को डी से ज्वाइन किया बाई द कॉर्ड, जो कि स्फीयर के अंदर लाई करेगी, क्योंकि पी भी स्फीयर पर है, डी भी स्फीयर पर है, तो इनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो इस तरह से अंदर लाई करेगी क्योंकि स्मॉल सर्किल है। और एक इनको मैंने ज्वाइन किया, कैसे बताइए आप कैसे ज्वाइन किया, यहाँ से पी से डी को यहाँ ज्वाइन करते हुए नीचे ले जा रहा हूं मैं क्यू तक। इन विच वे आई हैव ड्रॉन ए ग्रेट सर्किल पासिंग थ्रू पी एंड डी। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि अगर मेरे पास किसी स्फीयर पर 2 पॉइंट्स हैं तो उनसे मैं एक यूनिक ग्रिड सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा है पी से होते हुए डी तक, ये ग्रेड सर्किल है जो पी और डी से पास हो रहा है। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाई दिस ग्रेड सर्किल आल्सो पास थ्रू क्यू। ठीक है, अभी आप इसको एज्यूम कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर मुझे प्रूव करना है कि इस एनी पॉइंट डी जो कि स्मॉल सर्किल पर है, इसकी पोल से डिस्टेंस एक कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये क्लेम करना है कि जो ट्राइंगल है ना पीसीडी, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए आप ध्यान से, ये आपको लग नहीं रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल, बड़े राइट एंगल ट्राइंगल है। रीजन सेम है जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो पीसी लाइन है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये शेडेड प्लेन, और सीडी लाइन जब ये प्लेन में लाई कर रही है तो ये दोनों एंगल π/2 होगा ये। So I have applied Pythagoras theorem here. Okay. In this way I have proved that PD is a constant. है ना, तो PD अगर constant है और यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो ये जो PD है, D पॉइंट आप अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इस सर्किल पे आप कहीं भी ले, PD will always comes out to be same। यही मुझे यहाँ प्रूव करना था। ओके, फिर मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है, ये नोट आपको बाद में समझ में आएगा, बाद के लिए लिखा है मैंने कि अगर PD कांस्टेंट है तो फिर आर्क PD भी कांस्टेंट होगा। देखिए आप PD एंड आर्क PD डिफरेंट है। PD सिर्फ सिंपल PD लिखने का मतलब तो है कि ये कॉर्ड PD, और आर्क PD ये इसके एडजेसेंट जो बना हुआ है। आर्क का मतलब आर्क ऑफ ए ग्रेट सर्किल। तो अगर PD कांस्टेंट है तो ये आर्क PD भी कांस्टेंट, ये तो खैर क्लियर सी बात है। ये बाद में आपको समझ में आएगा कि इस आर्क PD को हम कॉल करेंगे बाय ए स्पेशल नेम, इट विल बी कॉल्ड बाय स्फेरिकल रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्किल जो कि यहाँ बना हुआ है। उसको मैं अभी बाद में लेता हूँ। फिर आप देखिए सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द पोल, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के लिए आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको इस डायग्राम में 2 ग्रेड सर्किल दिख रहे हैं, नंबर 1 ग्रेड सर्किल 1 एंड नंबर 2 ग्रेड सर्किल। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, द आर्क ऑफ ए ग्रेट सर्किल,
है ना। और स्पेसिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया है, ऐसे बुक में डाला हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस ग्रेट सर्किल 2 की। द आर्क ऑफ ए ग्रेट सर्किल ड्रॉन फ्रॉम ए पोल ऑफ ए ग्रेट सर्किल 1। ये सपोज इनिशियली एक ग्रेट सर्किल बना हुआ था किसी स्फीयर पर, और ये इसका पोल था। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी गिवन ग्रेट सर्किल के पोल से हम एक आर्क ड्रॉ करें, कहां से ड्रॉ करें? पोल से। और कहां तक ड्रॉ करें? इस ग्रेट सर्किल के एनी पॉइंट तक, टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। तो P से A तक ड्रॉन जो आर्क होगा, ये A पॉइंट अगेन इस ग्रेट सर्किल पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो P से A तक जो ड्रॉन आर्क है, ये एवरी केस में ये क्वाड्रेंट होगा। ये मुझे प्रूव करना है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी किसी परिधि का 1/4। ओके, तो आप देखिए इसको हमने कैसे प्रूव किया है। अगेन आई हैव क्लेम्ड दैट कि ये जो PO है ये OA के परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस केस में ये जो एंगल है POA, ये आपके π/2 हो जाएगा। तो अगर ये एंगल π/2 है, देखिए आप POA, तो इसको सबटेंड करने वाला जो आर्क है, ये एंगल किस आर्क के द्वारा सबटेंडेड है? PA आर्क के द्वारा, सेंटर ऑफ द स्फीयर पर। तो कंप्लीट सर्किल के द्वारा सेंटर पर एंगल बनता है 360। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये किसके द्वारा सबटेंड होगा? 1/4 ऑफ द आर्क के। तो यही मुझे प्रूव करना था कि P से A तक का जो आर्क है, ये एक्चुअली पूरे सर्किल का 1/4 है, मतलब क्वाड्रेंट है। इन स्फेरिकल रेडियस सेंस, पहले मैं स्फेरिकल रेडियस को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए आप इधर, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। ये क्या कह रही है? बहुत सिंपल है। स्फेरिकल रेडियस का मतलब होता है, पहली बात तो रेडियस वर्ड हम किसके लिए लिखते हैं? किसी सर्किल के लिए। तो यहाँ पर सर्किल या तो स्मॉल होगा या ग्रेट होगा। तो पहले आप देखिए हम स्मॉल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये स्मॉल सर्किल, तो ये स्मॉल सर्किल है, यहाँ मैंने बनाया हुआ है। हाँ, इस फिगर में देखिए आप, ये स्मॉल सर्किल है। तो इस फिगर के अंदर ये P से लेकर D तक का जो आर्क है, जहां D कौन है? इस स्मॉल सर्किल का एनी पॉइंट, और P कौन है? इस स्मॉल सर्किल का पोल। तो किसी भी स्मॉल सर्किल के लिए पोल से लेकर उस सर्किल के किसी भी पॉइंट तक जो ड्रॉन आर्क है, उसकी लेंथ हमने पहले प्रूव कर दी कांस्टेंट होती है। तो ये लेंथ ही कहलाती है इस स्मॉल सर्किल की स्फेरिकल रेडियस। याद रखिए, रेडियस वर्ड और स्फेरिकल रेडियस वर्ड एंटायरली डिफरेंट है। इस फिगर के अंदर इस सर्किल की रेडियस तो है CD, सिंपल रेडियस जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो हम सिंपल रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल रेडियस। तो इस स्मॉल सर्किल की स्फेरिकल रेडियस कितनी है? PD। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बोलती है। अच्छा, अगर हम ग्रेट सर्किल की बात करें, तो आप देखिए ग्रेट सर्किल, जैसे ये ग्रेट सर्किल है, इस ग्रेट सर्किल की स्फेरिकल रेडियस क्या होगी? तो वही मुझे यहाँ पर इसके पोल से एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्रेट सर्किल आर्क, जो कि इस सर्किल के एनी पॉइंट तक खींचा जाएगा। यानी मैं सिर्फ यहाँ से लेकर P से लेकर A तक के आर्क की बात कर रहा हूँ। और अभी भी मैंने प्रूव किया कि ये जो आर्क होता है, इसकी लेंथ होती है π/4, सॉरी π/2, क्योंकि कंप्लीट लेंथ 2π है और हमने कहा था क्वाड्रेंट है, तो ये π/2 है। तो इस सेंस में मैंने ये प्रूव किया कि अगर मेरे पास कोई ग्रेट सर्किल है, तो उसकी स्फेरिकल रेडियस π/2 होगी। ठीक है, तो आप देखिए ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ओके, स्फेरिकल रेडियस ऑफ ग्रेट सर्किल ADB। तो आप देखिए ADB, ये स्फेरिकल, ये ग्रेट सर्किल है। इसकी जो आपके पास स्फेरिकल रेडियस है, ये आपकी हो जाएगी, किसी भी ग्रेट सर्किल की स्फेरिकल रेडियस π/2 होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट कंसेप्ट जो कि मुझे आज आपको एक्सप्लेन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। ये जो आप यहाँ पर बात समझने जा रहे हैं, ये आपको इस पूरी बुक में थ्रू आउट काम आएगी। ओके, स्फेरिकल ट्रायंगल, अभी तक आप समझते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल इज अ लाइन, इज ए क्लोज फिगर which is formed by joining two points out of 3. Okay,
in space or in a plane, so it is triangle. But we are not talking about triangle, we are talking about spherical triangle. तो सीधी सादी बात है, कोई भी spherical triangle जो होगा वो किसी sphere पे बनेगा. तो आप देखिए ये एक sphere है, इस स्फीयर पे मैंने ये 3 पॉइंट्स कोई भी अज्यूम कर लीजिए, आप इसको विजुअलाइज करें, ज़्यादा समझ में आएगा कि आपने एक बॉल ली, उसके ऊपर आपने 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए पेन से. अब आपको क्या करना है, उन 3 में से 2-2 पॉइंट को ज्वाइन करना है. अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर मैं आपको प्लेन में 3 पॉइंट्स चूज करने को बोलूँ और मैं आपको बोलूँ उन 3 में से 2-2 पॉइंट को आप ज्वाइन करो, तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि वहां पर तो उनको ज्वाइन करने का एक यूनिक वे है बाय द लाइन सेगमेंट. पर यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ ए और सी को ज्वाइन करो, या बी और सी को ज्वाइन करो, या ए और बी को ज्वाइन करो, तो यहाँ पर स्फीयर के ऊपर ये पॉइंट्स हैं, तो इनको ज्वाइन करने के सेवरल वेज हैं. यानी कि बी से सी तक अगर आपको एक आर्क बनाना है तो यू कैन मेक सेवरल आर्क्स स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड गोइंग टू सी. पर आपको यहाँ कैसा आर्क बनाना है, आपको यहाँ पर जैसे सपोज बी और सी की बात करें अपन, तो बी पहले आपको एक ग्रेट सर्किल यहाँ पर ड्रॉ करना है. और हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी 2 पॉइंट जो स्फीयर पर हैं, इनसे पास होने वाला एक यूनिक ग्रेट सर्किल होता है. तो ये यूनिक ग्रेट सर्किल देख रहे हैं आप, जो बी और सी से पास हो रहा है. सिमिलरली ये यूनिक ग्रेट सर्किल जो ए और सी से पास हो रहा है, और ए और बी से पास होने वाला ये यूनिक ग्रेट सर्किल. सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको, ये सर्किल आप कह सकते हो कि भाई ये आपने ऐसा क्यों लिया है, ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, बाकी ये कोई भी हो सकता है. अब आपने एक्चुअली यहाँ पर एक तरह से इस किसी स्फीयर पर 3 सर्किल बना दिए, 3 ग्रेट सर्किल. अब जैसे आप इस सर्किल की बात करें अपन, ये वाला ग्रेट सर्किल, तो इस ग्रेट सर्किल में अब आपको क्या करना है, अगर मैं आपको बोलूँ आर्क बी सी, तो यहाँ पर बी से सी तक जाने वाले 2 आर्क हैं. एक तो ये आर्क बी से सी तक, और एक देखिए अब ये वाला आर्क बी से यहाँ से, यानी बाय द लॉन्ग रूट. तो हमने क्लियर डेफिनेशन में क्या कह दिया, शॉर्टर आर्क. यानी कि अब आपको 3 ग्रेट सर्किल तो आपने बना दिए, अब आपको उन ग्रेट सर्किल्स पे उन पॉइंट से पास होने वाले शॉर्टर आर्क को आपको एक तरह से हाईलाइट कर लेना है. ये मैंने हाईलाइट कर रखे, देखिए आप. तो इन हाईलाइटेड आर्क से जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, यही कहलाएगा स्फेरिकल ट्रायंगल एबीसी. ओके, तो ये डेफिनेशन है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. फिर आप देखिए यहाँ पर 3 नोट्स लिखे हैं मैंने, इंपॉर्टेंट बातें. ये नोट 1 क्लियर है, नोट 2 इंपॉर्टेंट है. देखो आप, ये कहता है कि किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल, ये एबीसी स्फेरिकल ट्रायंगल है, इसकी जो तीनों जो साइड्स हैं, अब आप देखिए इसकी साइड्स जो होंगी ना, वो लाइन सेगमेंट नहीं होंगी, इसकी साइड्स क्या होंगी, इसकी साइड आर्क होंगी. एंड दीज आर द पार्ट ऑफ ग्रेट सर्किल्स. तो हम यहाँ पर क्लियर कट एक रूल बना रहे हैं कि किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं, पहली बात तो हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे वही हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का जो मेथड है एबीसी से. ए साइड होगी बीसी, बी साइड होगी एसी, सी साइड होगी एबी. ये थर्ड पॉइंट आप देखिए, जिसको मुझे आपको इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ मैं, यहाँ लिखा भी है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये कहता है कि जो तीनों जो इसकी साइड्स हैं, ये तीनों साइड्स जो होंगी, ये ये वाला सेकंड पॉइंट, द साइड्स ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल आर ईच लेस देन 2 राइट एंगल्स. यानी कि AB की लेंथ पाई से कम होगी, BC की लेंथ पाई से कम होगी, सिमिलरली CA की लेंथ भी पाई से कम होगी. क्यों बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट समझने का कंसेप्ट. देखिए अब इधर, यहां मैंने क्या कहा था कि ये जो BC आर्क है, ये इस ग्रेट सर्कल का कौन सा पार्ट है, नेचुरली मैंने कहा था शॉर्टर. तो शॉर्टर अगर है, इसका मतलब ये सेमी सर्किल से छोटा होगा, है ना, यानी कि हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस से भी कम होगा ये. तो अगर ये हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस से कम होगा, यही तो हम कह रहे हैं, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस मतलब पाई, तो ये पाई से कम होगा. सिमिलरली जो फैक्ट मैंने BC के लिए रखा, वही फैक्ट AB और AC के लिए भी एप्लीकेबल है. ओके, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 3 कि लेंथ ऑफ एनी आर्क ऑफ ए ग्रेट सर्किल, हाँ, length of any arc of a great circle is denoted by the angle which the arc subtends at the center of the sphere. क्या मतलब है इसका, इसको आप बुक में, इसके ऊपर पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है मलिक वली बुक में, लगभग 7-8 लाइन का, उसको गो थ्रू होना. यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. देखिए अब इधर
हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ए बी आर्क है, तो इसको हम इस पूरी बुक में कभी भी जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको एक एंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी आर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल ए ओ बी। यहाँ ए ओ बी एंगल बना नहीं रखा है, आप इमेजिन कीजिए कि मैंने ए से ओ को ज्वाइन कर दिया, बी से भी ओ को ज्वाइन कर दिया, तो एक एंगल बन गया। ये एक एंगल क्या कहलाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि किसी भी आर्क की जो लेंथ है वो उस एंगल के द्वारा डिनोट होगी या रिप्रेजेंट की जा सकती है जो कि वो आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप जरा इसको पढ़ के और इसका मीनिंग आप समझ के, ओके, बाकी रिमेनिंग वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।